used to teach the direct action day call given by Jinnah on 16th August 1946, and then the killings and the incidents which started from there. They were earlier also, but I take it as the trigger point. Then the partition violence. I had never imagined that one will see the repetition of this in one's own life today. And not only with Hindus, the world has seen what a few years back was done to the Jajdis in West Asia. One could have imagined that signals were coming from there, what is happening in Bangladesh today. Okay, when Jajdi women are paraded naked, they are kept in cages, they are sold as slaves in the markets, raped, made to eat the flesh of their children, all reported incidents. But we won't see the signal. I'm also reminded of a report prepared by SGPG, Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, authored by Dr. Talib. I think it was published sometime in 1852-51. That was a report on atrocities on Sikhs and Hindus in Pakistan, which detailed the smallest village in those areas, what happened over there. Now, my knowledge is very limited. A question was being asked, there are minorities safe in India? I'll put a counter question. And I like that my knowledge should be enhanced. Name me a single country in the world, where the peaceful religion has expanded itself without the help of a sword. One country in the world. Name me a single country in the world where the religion of peace has not demolished the places of worships of other religions, whatever religion was there in that region. Name me one. And name me one country in the world where this peaceful religion has not converted people with sword. I like to enhance my knowledge on that. Please enlighten me before asking me this question, that whether the minorities are safe on India. The very concept of this question tells me your mindset, because it is the Indian democracy which allows you to make these questions. Let this question be asked in Pakistan, let this question be asked in Bangladesh, let this question be asked in Afghanistan. We see every day shouting by, I don't hesitate in naming. What's that? Arfa Khatun talking against in India minorities, this is happening. Madam Arfa Khatun, can you go and stay in Afghanistan for 5 days and talk what you are talking and what you are demanding? Or Rana Ayub, or any one of these. It's very easy to use the Indian democracy as a tool. How many of you are aware of the concept of Dinia? And I'm saying this concept of Dinia today, which was given by Rahmat Ali in the 40s. It was not just a demand of Pakistan with the Sindh, Punjab and NWP and all. Dinia. Wherever a Muslim population was there, so the areas around Hyderabad were to be Osmanistan. The Mopla areas were to be Moplaistan. Bihar was to be Hyderistan. Like this, each and every area was named. It's not me speaking. Look at the documents you pick up over there and talk of it. Which is being repeated today. What are these Maulanas saying in Bangladesh now?
What call they have given? Do I have to tell you and repeat that call to you? That Ghazwa Hind be done again, and we appeal to the Muslims of Bihar, Bengal and UP. This is the opportunity now to rise. If in a country a minority can raise the slogan "Sar tan se juda," so how safe that minority in this country, I leave it to the audience to judge. I don't have to comment on that. Now what is happening in Bangladesh? Prernaji, I don't have any expectations. When they say this Nobel laureate person is there and all. You all know how he was planted there. Since 1999, 11 million US dollars were funded to him by the Soros funding organization. What is that? Open Society Foundation. The Soros manager Mark Meloch Brown comes and meets him in Bangladesh now. Soros' son Alex Soros comes and meets him there. And I don't have to define to this audience what Soros is. Please look at it in a broader context. It is not just a question of Hindus. I take you to the map which is available there. Map made by Al-Qaeda and map made by ISIS. From West Asia to Indonesia. All in one color, green. And what do they call it? What do they call it? I have not made that map. And only 6 countries are left. India, Bhutan, Nepal, Burma, Sri Lanka and Thailand. And let me tell you one more thing. That this Islamic fanatism is not only just a danger to Hinduism. The way what they are doing to Awami League there, what they have done to Hasina over there. The same they'll be doing to the Sheikdoms. Whether it is Dubai or Qatar or Oman and all. Because they want to replace the rule everywhere with a mullah rule. We have seen what has happened in Afghanistan. We are seeing what is being demanded in Pakistan, and we are seeing what is happening in Bangladesh. Tell me one thing, I'm not against any religion. I have always believed कि अगर खाई भी है तो हमें खाई पाटनी चाहिए, भर देनी चाहिए. मैं तो पुल बनाने की भी बात भी नहीं करता कम्युनिटीज के बीच में. क्यों पुल भी बनाओगे तो कोई गिरा देगा, कोई तोड़ देगा. लेकिन किनके साथ? Show me one community in the world which has gone as refugee to the other country. And after comfortably settling their demands, then that country should change its laws according to these refugees. Show me one country in the world. I'm asking very strong questions. Someone will say he's a die-hard communal. No, sir. I'm a historian and I'm a social scientist. And I'm raising basic questions to ponder over. If you don't ponder over them today. And for these powers, who created Islamic terrorism in the world? The country which claims to be a big democracy in the world, which claims to be the biggest watchdog of the democracies in the world, the Americans, by creating Taliban, just because they had to overthrow Soviet Union. It's a different matter that Taliban went out of their hands. And which country armed the Taliban to the most? जितने liberal Muslims ने US को support किया in Afghanistan, how they were betrayed and how they were butchered then by the fanatics. The videos speak, stories speak. I have not created those. So don't blame me for that. Even a defeated army
doesn't leave its arms and ammunition. They blast them out. They take it with them. Millions and dollars worth of armaments left for Taliban by Americans who say they are a world power. They couldn't lift them out of Afghanistan. Or was it a secret deal? Which you see now. They opposed ISIS. They called ISIS a terrorist organization. And same, they joined hands with them in Syria. And after they have used them, now they say that we will not allow ISIS to rule in Syria. But to oust a regime in Syria, whatever brute regime that was, I am not supporting the Syrian regime. So for all this, human rights and this is absurd. Where is that Greta, who talked of environment, accused the third world? And since the Ukraine war, you have seen what kind of environmental degradation is taking place world over because of military exercises and war and all. ये कहाँ छुप गए मेलों में जाके सारे environmentalists? Where are these feminist organizations, with due respect? Show me a single Indian feminist organization who claim to be big feminists coming out a statement on Bangladesh against the rape or the murder of women in Bangladesh. Show me. मैडम पहले बांग्लादेश पे आ जाइए, फिर मणिपुर पे भी आ जाऊंगा मैं. नहीं, यही है आपकी दिक्कत. अपने देश पे कर लो. चीख नहीं बह रहा हूं. आपका सवाल, आप लोग पॉलिटिकली हर इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं. जब आप पे मेरे सवालों का जवाब नहीं है जो मैंने उठाए हैं, तो आप डाइवर्ट करने को मणिपुर ले आइए. मणिपुर में भी बैठ जाऊंगा आपके साथ मैडम, 2 घंटे बैठ जाऊंगा मणिपुर पे. जब मणिपुर पे डिस्कशन होगा तो मणिपुर कर लूंगा मैं आपसे. आ गए ना? हैं, अदानी ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है. आपके पप्पू ने एक को नौकरी नहीं दे रखी. अगर मुझसे पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिकल जवाब दूंगा. उन घरों से पूछो जो इनकी घर की रोटी अदानी की तनख्वाह से चलती है, और उस अदानी को तुम खत्म करने पे लगे हो. 4 लाख दिए है ना? पप्पू ने कितनी दिए? मैम डाइवर्ट मत करिए इशू को. हम लोग बहुत सीरियस इशू पर डिस्कस कर रहे हैं. मुझे नहीं मालूम कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूं. See what is happening in Bangladesh. It is a part of a global strategy. One by one. I pose another question to you. All these people who get together, particularly the question to me, are minorities safe in India? Sir, please tell me, are the minority Muslims safe in China, the biggest communist country claiming to be in the world with all the kinds of rights? Are you even in a position to ask any of those who claim that minorities are being oppressed in India, why they don't raise their voice against China, what China is doing to Algars over there? दाढ़ी भी नहीं रखने देंगे, नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद भी तोड़ के डाल दी है. वहां माइनॉरिटीज पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि चाइना पाकिस्तान का माई बाप है. वहां सवाल नहीं पूछा जाएगा चाइना के ऊपर. बात तो करें, फैक्ट पे बात करें. मैं तो नहीं उलगार्स को मार रहा ना. कोई हिंदू तो नहीं है ना चाइना के अंदर. आप जैसे अभी ये पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, वहां पे तो आरएसएस नहीं है ना चाइना के अंदर, वहां पे तो बीजेपी नहीं है ना चाइना के अंदर. यूरोप में जो हो रहा है वहां भी बीजेपी और आरएसएस करा रही है. कभी इस चीजों से ऊपर निकलिए. अगर जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो कभी अपने धर्म से ऊपर उठ के ह्यूमन होकर के भी सोचिए कि यू आर ए ह्यूमन. Think as a human. And my friend, human rights are meant for humans, not for inhumans, not for brutes. मैं देश की 50 चीज कह सकता हूं. क्या जुडिशरी आपकी कंट्री के अंदर आप लोगों ने खड़ी करवाई 47 के बाद से? हमको पंच परमेश्वर नहीं दिए, हमको माई लॉर्ड दिए, जो 80 लोगों को केसेस होते हैं और जमानत पे छोड़े रखते हैं क्रिमिनल्स को.
अगर देश की बात करनी है तो देखिए देश की बात क्या होती है। एक दिन में चीजें नहीं हो जाती। क्या करना चाहिए? I can raise, if any questions are there, I'll answer each and every question. Because there is a lot one can go and speak on hours for it. I don't want to double your time on that. एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं खत्म कर लूँ एक लाइन में, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। क्या करना चाहिए? ये बात हो रही है बार बार, बात करनी चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी चले गए। टेल मी वन थिंग, since 1947 the refugees totally got, if not stopped, totally marginalized from the side of Pakistan. But tell me, when did the influx of Hindu refugees stopped from coming from what we called East Pakistan at that time, or what even after Mujibur Rahman Bangladesh? You pick up the history of incidents, आप डाटा निकालिए, हर 3 महीने 2 महीने बाद वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। एंड देन वी से टॉक इट आउट। तो बड़ी अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी बात गवर्नमेंट से हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है हाँ जी मैं संभाल लूंगी, जैसे हम आज कह रहे हैं कि यूनुस को संभाल लेना चाहिए। तो टू सेव हिमसेल्फ ही विल कम आउट विद अ स्टेटमेंट, ही विल गेट द वायलेंस स्टेप फॉर अ मंथ, and then it will start again after 3 months. That is why the minority Hindus over there, 8 point some crores, are today reduced to 1.3 crores. Where have the others, those 7 crores disappeared? Someone should tell me the question. If negotiation and talking with the governments was a solution to that. Yunus should know one thing, and he knows pretty well. Cave under Mrs. Gandhi in 1971, Indian planes can bomb the bunker of Niazi in Dhaka. I'm giving credit to her, madam, because I'm not a political person. I go by the objectives and facts. So, Mr. Yunus, today our Air Force is much better equipped with that and with missiles and all. All these fanatics are there, they are at our radar. Their offices are at our radar. It won't take us 10 minutes if we come to it. It won't take us more than 10 minutes. You are talking of Adani giving oil to Bangladesh. Bijli. My question is, why did then Mrs. Gandhi did not clean up Bangladesh from pro-Pakistani forces over there in 71? Why 90,000 of their soldiers were let go? You know who said that at that time? परवेज, ये नहीं, इनका जनरल जो था, इधर तो नियाजी था, उधर पाकिस्तान में एच से क्या नाम था, जिसने कहा था मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा। याहिया, इनकी मैं नस्ल बदल दूंगा बंगाली मुसलमानों की। वो मुसलमान नहीं थे साहब क्या? पंजाबी मुसलमानों के सामने जो इनकी नस्ल बदलने की बात एक पंजाबी मुसलमान कर रहा था बंगाली मुसलमानों की, और आज बलोचों की कर रहे हैं जो हालत वहां पे। हाँ साहब, जो तरीके दे हैड अडॉप्टेड फॉर चेंजिंग द रेस, जो वहां पे बलात्कार किए गए विमेन के और जो रेस किया गया, उन्हीं की पैदाइश आज समझ में आ रही है कि वो नस्ल बदली हुई हमें बांग्लादेश में दिखाई दे रही है कि इतने एहसान फरमोश जिनका देश हिंदुस्तान ने बनवाया हो, जिनको हर तरीके की सहूलियत हिंदुस्तान ने दी हो, आज उसके ऊपर वो ये आंखें दिखा रहे हैं। तो वाकई में तुम्हारी नस्ल बदल चुकी है भाई। यू टॉक ऑफ माइनॉरिटीज, टेल मी, एंड डोंट ब्रिंग दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान की बात मत करिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे आप सब जगह एक हो जाते हैं। Palestine, Israel has no right to live there. It is a country there which was created by the British in 48. वो भूल जाएंगे कि 7th century AD से पहले वहां कौन रहता था। चलिए वो भी बात मैंने आपकी मान ली कि चलिए जी ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की। So British created Pakistan on the basis of religion. That is welcome.
But if British created a Jewish nation in the name of religion, no, how can they dare to do that? And they should be ousted. इजराइल का आप मैप बदलने की बात करते हैं, क्या ज्यूज मेजॉरिटी है वर्ल्ड के अंदर? अहमदियों के साथ क्या सलूक होता है? जो पाकिस्तान की लीड पे थे अहमदिया लीडर्स, और तो और छोड़िए, शियाज के साथ क्या होता है? सूफी मज़ारों के साथ क्या होता है? इसलिए डोंट गिव मी दिस के इंडिया के अंदर, आज जितनी इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं, मुझे दुनिया में एक माइनॉरिटीज तो छोड़िए साहब, मुझे इस्लाम रिलीजन के मानने वाले उतने सुरक्षित दिखा दीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। जो औरतों के साथ अफगानिस्तान में किया जाता है, क्या वो इस्लाम की मानने वाले नहीं है? खुद उनके साथ क्या किया जा रहा है उस धर्म के अंदर, और यहां आप ये रोना रोते हैं उठा करके आकर के कि माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में सुरक्षित है या नहीं। जनाब, अगर माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में सुरक्षित होती नहीं तो ओवासी जैसे रोज जहर नहीं घुलते यहां पे हिंदुस्तान के अंदर, बंद होते जेलों के अंदर। अगर माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं होती तो नासा के अंदर बंद एक टेररिस्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चुनाव जीत नहीं सकता था। देखिए जवाब मुझे, दुनिया में कोई देश मुझे दिखा दीजिए। इमरान खान बंद है ना जेल के अंदर, लड़के दिखा दे पाकिस्तान में इलेक्शन। दैट्स ए पॉलिटिकल गेम, ये दैट्स ए पॉलिटिकल जेल। हाँ, कि उसको छोड़ा जाए, कोर्ट छोड़ देता है इलेक्शन कन्वेंसिंग के लिए एक टेररिस्ट को जो नासा में बंद है। वहां माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती आपको कि कोर्ट क्या कर रहा है। So any questions coming on this? There's a lot one can go on speaking. Thank you very much. जी please. Thank you so much. बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा, फंडिंग कहाँ से बांग्लादेश में आई। तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि ये जो मिडिल ईस्ट पेट्रो डॉलर है, ये कब तक जिहाद करती रहेगी पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में? सर, मेरे को डाउट अब ये होता है कि क्या वाकई में ये मिडल ईस्ट का पेट्रो जिहाद है जो डॉलर कर रहा है, जिहाद कर रहा है, या इस पेट्रोल को कंट्रोल वाली जो करने वाली जो पावर्स हैं वो ये जिहाद कराती है। सुनिए एक मिनट, सुनिए। पानी गंदा हो या नाली, नहीं सुनिए, नहीं देखिए, ये बड़े उसकी बात देखिए। लेबनान के अंदर एक ट्रूस हो गया, ठीक है, 2 दिन बाद सीरिया खुल गया, ठीक है, अभी 4 दिन बाद कुछ और खुल जाएगा, ईरान आ जाएगा, एक एक करके उसके ऊपर ही आ जाएगा, और फिर एक दूसरे से मिल जाएंगे। अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस, आई पर्सनली बिलीव कि हमारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है इस समय तो ना वो पाकिस्तान है ना वो चाइना है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। इकोनॉमिकली एक चाइना उठ के खड़ा हो गया, और चाइना को इन्होंने ही खड़ा किया था सोवियत यूनियन के उसमें। चाइना की जब इकोनॉमी ऊपर उठी तो हिल गया अमेरिका। आप समझते हैं कि क्या अमेरिका ये कभी मंजूर करेगा कि इंडियन इकोनॉमी उठ करके ऊपर जा सके? आज उन पे डॉलर पावर है, ब्रेन नहीं है उनके पास। आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप। 51% ही वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड है डॉलर में। अब यदि वो 50 से नीचे आएगा फिर क्या होगा? सर नीचे आया ही नहीं, अगर वो रूपी ट्रेड शुरू हो गया और बार्टर ट्रेड शुरू हो गया इन सेम करेंसीज बिटवीन 2 कंट्रीज बायलैटरली, तो अमेरिकन डॉलर का क्या हाल होगा? यूक्रेन पे क्या किया है अमेरिका ने? जर्मन इकोनॉमी को डाल दिया ना नीचे बिल्कुल। तो स्वीडिश रिपोर्ट आई थी ना सामने आपके निकल करके। एंड सो लॉन्ग अमेरिकन सॉइल इज नॉट अटैक्ड। हिस्ट्री में एक पर्ल हार्बर हुआ था, उनके तो छक्के छूट गए थे उससे, उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या फिर 9/11 हुआ। अदरवाइज उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टेररिस्ट है, कोई किसी रिलीजन पे टेररिस्ट बनना है, कोई क्या बन रहा है। वो तो उठा, आप सीआईए की फंडिंग देख लीजिए उठा करके, कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। सर एक क्वेश्चन का जवाब जी दीजिए जी। कि जब भी कोई भी वहाँ पे युद्ध होता है, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, तो आपने ये जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है या यूनाइटेड नेशन है, आप पहले पूरी बात कीजिए। सुन रहा हूँ, आई नो व्हाट यू से। ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं?
अब देखिए, जब इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा हुआ तो बैकरन साहब कहते कि वहाँ पे हम पीस कीपिंग भेज देते, तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं भेजते, ये अफगानिस्तान में क्यों नहीं भेजते, ये हर जगह क्यों नहीं भेजते? Sir, very relevant point you are making. Why did League of Nations fail? Why did it fail? Dominated by some countries and conditions imposed on other countries. अगर हिटलर को कोई नाजी और फासिज्म के और उसके लिए कोई जिम्मेवार है अगर, तो लीग ऑफ नेशंस है जो जर्मनी के साथ सलूक किया, और यही आप आज कर रहे हैं। मेरा तो यूएन में कभी विश्वास नहीं रहा। वही अगर आप आज मुझे एक बात बताइए, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम सबके राइट्स एक हैं, तो क्या नेशंस के राइट्स एक नहीं होंगे? अमेरिका के राइट्स ज़्यादा क्या होंगे, या चाइना के ज़्यादा क्या होंगे, या रशिया के ज़्यादा क्या होंगे, या इंग्लैंड और फ्रांस के ज़्यादा क्या होंगे? क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी। सर वो सुपर पावर है, दैट्स व्हाट आई एम। हम लोग तो कुछ भी नहीं। तो फिर कहिए ना, सीधा पावर गेम है, आपको आंसर खुद आपके पास मौजूद है कि भाई ये आईपीएफ और ये पीस कीपिंग यूनियन कुछ नहीं है, ये पावर गेम है। फॉकलैंड्स को कैसे बचा लिया था सबने, एक कॉलोनी को ब्रिटिशर्स की, समझे ना? तो ये आपने तो खुद आंसर जानते हैं, आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि ये बिग पावर गेम है। इट इज नथिंग टू डू विद द राइट्स ऑफ नेशंस एंड ऑल। लेकिन अभी आप कह रहे हैं इंडिया भी बहुत पावरफुल हो गया है, तो वो पावर देखिए आप टोटलिटी में फॉलो करिए। आज मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आई विल आंसर दिस। I would like to request you that please focus your questions on Bangladesh, on the Bangladesh report which we have prepared so painstakingly. We have worked on the ground. Maybe some other times we can talk about the geopolitics, we can talk about other issues. But today we have chosen it for Bangladesh minorities and the things which are happening there. नहीं, मैं हाजिर हूँ साहब, जहाँ कहीं मैं हाजिर हो जाऊँगा। हमने इनको इनकी एमिनेंस मालूम है, इसीलिए हमें नहीं। लगा कि ये पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उस दृष्टि से आपको हमने बुलाया। ये प्रोफेसर कपिल कुमार, ये बांग्लादेश में सारे मुस्लिम हिंदू को पीटने के लिए एक जगह, मतलब उनको दिमाग एक हो गए, हिंदू को मारने के लिए जितने मुसलमान है बांग्लादेश में, तो सारे वन टू ऑल, मतलब दे आर। मैंने नहीं कहा ये, प्लीज, ऐसा है, और ना ये रिपोर्ट कह रही है, और मैंने ये 47 पे भी नहीं कहा। देखिए 46 एक बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। 46-47 में भी हुआ कि किसी पड़ोसी ने पड़ोसी को बचाया भी, लेकिन जो नैरेटिव 47 का हमारे यहाँ लाके डाला गया हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से, उस नैरेटिव में ये जो ह्यूमैनिटेरियन काम हुआ था वो किसी को नहीं, बच्चों को पढ़ाया गया। पढ़ाया सिर्फ ये गया कि मारा गया एक दूसरे को। मेरे बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम हैं, मैं मेरठ से आता हूं, मेरठ में रॉयट्स होते थे, हम चारों दोस्त इकट्ठे घूमते थे, घर पे शिकायत होती थी कि तुम्हारा कब बंद होगी। भाई साहब मैं वो ज्योतिष तो हूं नहीं मैं, लेकिन हाँ सुनिए आपके इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। आपके इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दूंगा मैं। एक मिनट प्रेरणा जी, क्योंकि सवाल बड़ा इन्होंने पूछा है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं। और ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। ये मैं इस्लामिया कॉलेज चेन्नई में बोला था। मैंने माना कि मुसलमानों में गरीबी बहुत है, पढ़ाई नहीं है मुसलमानों के अंदर, ठीक है, रोजगार नहीं मिलता उनको। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुसलमानों को मुस्लिम नाम पे इस्लाम के इकट्ठा करके राजनीति करते हैं, उनके कुनबों पे इतना पैसा कहां से आ गया? उनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ते हैं, यहां कहते हैं मदरसे में पढ़ाओ, उनको रोजगार भी मिले हुए हैं। जिस दिन इन सवालों का जवाब मुस्लिम युवक ने मुसलमानों के नाम पे जो राजनीति नेता करने वाले बैठे हुए हैं उनके गले में हाथ डाल करके पूछ लिया ना, ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। मैम पाकिस्तान, ये बांग्लादेश से संबंधित बोला कि अमेरिका सबसे बड़ा टेररिस्ट है। सर सबसे ज्यादा तो मोदी जी यहाँ गए और अमेरिका गए, और हमारे देश में ज्यादातर लोग अमेरिका। अरे एक बात बताइए, मोदी जी तो गए,
मोदी जी तो सीना तान के गए, मनमोहन सिंह तो सिर नीचा करके खड़ा होता था, वो क्यों जाता था अमेरिका? मुझे बताइए, क्या बात करती है? आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एबीसी नहीं मालूम कि कौन गया और कौन गया? आप पूछेंगे, छोड़िए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, सॉरी, I again request everyone, आई एम सॉरी। आप बहुत ही सब लोग, हाँ, Please. बांग्लादेश पे क्वेश्चन है तो आप पूछिए बिल्कुल। और रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट, बांग्लादेश इंसिडेंट जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदुओं को, क्या ये पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए आई ओपनर होना चाहिए कि जब एकजुटता की बात हम करते हैं तो मुस्लिम्स में एकजुटता दिखती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, लेकिन अगर हिंदूज की एकजुटता की बात करें तो कहीं कास्टिज्म में वो बटे हुए हैं। तो क्या बांग्लादेश इंसिडेंट एक आई ओपनर तमाम हिंदुओं के लिए होना चाहिए? Madam, I'll tell you something. Certain events have been happening. Certain events have been taking place. I'll tell you, there is a country in Caribbean. I was posted there for 2 years. In 1 year, 366 Hindu women were raped and murdered. But everything was put as a law and order problem. The incidents which took place in London, the incidents which take place in Canada, all the symptoms, and these are coming up. What happens in Pakistan to all minorities, Christians also, Sikhs also, Hindus also, and to Muslim, different sects of Muslims also. शिया, पसमंदा, वो अरे वो नहीं, वो एक इनका वो जो भाग अफजल, वो कौन था, चला गया, वो जो इधर से जाने वालों के लिए एक शब्द बना रखा था इन्होंने, जो 47 में गए थे यहाँ से। नहीं, मुजाहिद नहीं, नहीं, एक और वर्ड है उनके लिए, मैं बता, अभी याद, अभी ध्यान आ जाएगा मुझे। नहीं, एक और वर्ड है, मैं बताऊंगा आपको, मुझे ध्यान है, समझे? नहीं, मुजाहिद भी नहीं बोलते, मुजाहिर कुछ ऐसा वर्ड है, ये इनको मालूम होगा, मुजाहिद, समझे आप? तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि आईज आप किसकी ओपन कराएंगे? मुझे बताइए। जो बात होती है हिंदूज की आईज ओपनर की, और आपने जो कास्ट वाली बात और ये सब उठाई, जब आपके बड़े बड़े संत तो मर्सिडीज बाबा बन गए हैं, समझे? उन्हें तो अमेरिका में जाकर के वो पैसा बनाना है। आप और जो भी जो हैं, आप जाकर के ज्योतिषी से और पंडित से तो पूछते हैं आपकी शादी कब हो जाएगी, नौकरी कब लग जाएगी, पैसा कब आ जाएगा मेरे पे, घर मेरे पे कब बन जाएगा। कोई ये पूछता है कि क्या हम बचेंगे आज के ज़माने में जो हो रहा है? एक जना जाके पूछता है। तो ये तो आपको इंटरनल हर एक में आएगी। और मैं केवल इसको हिंदू की बात नहीं करना चाहता, एवरीवन हु बिलीव्स इन ह्यूमनिज्म फ्रॉम एनी रिलीजन। मैंने एक सवाल पूछा था, व्हेन दिस इज सेड कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, तो एक वो जॉन डेनियल साहब हैं, बड़े कन्वर्शन कराते हैं, टीवी डिबेट में थे, 3 बार बोले आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। आई सेड आर यू श्योर? ही सेड यस। आई सेड इफ यू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स then please tell me, why do you go and convert people from other religions? When does the respect go then? And you pay bribes also for that. उठ के भाग गए डिबेट में से। तो लॉजिक और उस पर बात अगर की जाए तो कभी झगड़ा नहीं होगा भाई। अगर इतना बड़ा डिफरेंसेस है दोनों में, मैं एक छोटी सी बात आज आपके सामने रखता हूं। एंड आई ट्राइड दैट इन ट्रिनिडाड। There was a gathering of different religions, and I was sitting there by our Gurdwara, it's of the Caribbean and all. I said one thing, और मैं आज हिंदुस्तान में कहता हूं उस बात को, 1 साल के लिए हिंदू, इस्लाम, सिख ये भूल जाइए, और जितने धार्मिक नेता हैं हर धर्म के, एक मिनिमम प्रोग्राम बना ले कि हम यूथ में जाएंगे और हम यूथ से कहेंगे ड्रग्स छोड़ दो, शराब छोड़ दो, पढ़ाई करो, माँ बाप की इज्जत करो, स्त्री की इज्जत करो, रेप करना बंद करो। क्या ये धार्मिक नेता एक इस मिनिमम सोशल प्रोग्राम पे भी इकट्ठे हो सकते हैं? मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा गुस्से भी हुआ आपने जब ये माइनॉरिटी वाला सवाल मुझसे पूछा, इंडिया वाला। अरे आपसे कोई नहीं, मैं रोज बेस का, ये रोज होता है भैया, टीवी डिबेट्स में रोज आता है सवाल रोज वाले पर। सो इसलिए एक और जागने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और
आपने ये बात उठाई है एक होने वाली। मैंने ट्वीट किया एक, मैं तो जाति नहीं लिखता, बड़ा कॉम्पोजिट फैमिली है मेरी। मैंने कहा अगर आप ये जो बात कर रहे हैं कि हिंदू एक होना चाहिए और नहीं बटेंगे, तो आप अपने सर्टिफिकेट में अपनी जाति नहीं हटा सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया से तो अपनी जाति हटाना शुरू कर दीजिए। वहां से तो हटा सकते हैं आप। 3 लोगों के जवाब आए, हाँ सर मैंने आज से करके हटाना शुरू कर दिया। उस ट्वीट को मेरी रीट्वीट करने में लोगों को दिक्कत है। So we are living in a very complex world which is personalized. Everyone has personal interest today. बांग्लादेश में 23% से 8% आ गई, वहां से कहते हैं कि भारत में आ गए। अब भारत में भी कम हो गई। पिछले 75 साल में जो आप देखिए उस समय पे क्या परसेंटेज था और आज डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है, तो हिंदू कहाँ गया। और बांग्लादेश की एक प्रोफेसर अबुल बरकत हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रिसर्च की है कि जिस दर पर, जिस रेट पर ये यहाँ से एग्जॉडस हो रहा है और ये फियर साइकोसिस क्रिएट करके किया जाता है, या तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं या वो घर छोड़ के चले जाते हैं और या फिर मारे जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है अपनी रिसर्च में, प्रोफेसर अबुल बरकत ने, कि अगर इसी दर से हिंदूज खत्म होते रहे बांग्लादेश से, तो आने वाले, उन्होंने 3 दशकों का कहा है कि उसमें हिंदू नहीं बचेगा। अब वो उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको रिसर्च किया है और बहुत ही फेमस उनकी रिसर्च है और बहुत किताबें भी लिखी हैं। ये जो है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पर कितने लाख हेक्टेयर का जो हिंदू की जो ज़मीन थी उसको लिया गया बांग्लादेश में, और आज भी ज़मीन का बहुत बड़ा एक इशू है कि ये छोड़ के चले जाए। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब चीज़ें लोग आमतौर पे समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे डिज़ाइन है। ये कोई अचानक से नहीं हुआ कि वो एंटी कोटा राइट्स हो गए या एंटी कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुए, वायलेंट हो गए। नो, it's a complete method, system in it. And if we fail to understand that system and method, then obviously we will not be able to reach at the roots of the problem. अच्छा सर, एक क्वेश्चन प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये सबसे अनुरोध करूंगी कि जो ज्यादातर लोग यहाँ पर सुनने के लिए बांग्लादेश पे बात करने आए हैं, तो अपना प्रश्न जो है बांग्लादेश तक ही लिमिटेड। जी जी, ये प्रोफेसर साहब जरा इधर देखिए। अब आप ये बताइए कि आप बिग ब्रदर हैं, इंडिया इज अ बिग ब्रदर। वो चाहे श्रीलंका में प्रॉब्लम हो, खाना तो आपको ही भेजना है। वो चाहे भूटान में प्रॉब्लम हो, बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो, मुजीबर रहमान मर रहा है या पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, नेपाल में तो कुछ हो, आप क्यों नहीं उन लोगों को समझाते? प्लेटफॉर्म है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, उसमें आप अग्रिम भूमि अपनाते। ये मेरा क्वेश्चन। सर ऐसा है, जिस इलाके से मैं आता हूँ, वेस्टर्न यूपी से, मेरठ से आता हूँ, तो वहाँ किसी ने किसी से कहा कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 5 होते हैं। उसने कहा नहीं भाई, 2 और 2 4 होते हैं। बोला तेरे लिए होते होंगे, मेरे लिए तो 5 होते हैं। तो आप कोई चीज़ समझाओगे उसको, जो आदमी या कोई व्यक्ति उस चीज़ को या कोई सरकार उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है। क्या पाकिस्तान की सरकारों को मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या हालत बना दी है पाकिस्तान की? ISI वहाँ पे बिजनेस है उनका पूरा, मिलिट्री रिजीम, वो तो फूड बेच रहे हैं और वो बेच रहे हैं पूरा लेकर के। सर जब अमेरिका उनको पैसा भेजेगा तब वो डंडा तो करेगा ही। मुझे नहीं, देखिए अमेरिका, देखिए वो तो एक, मैंने इसीलिए शुरुआत ही जब मैंने वहाँ से की थी कि ये चीज़ें अब हमें एक बहुत बड़े वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी। ये केवल 2 कंट्रीज़ की समस्या नहीं रह गई है, केवल 2 कम्युनिटीज़ की समस्या नहीं रह गई है। आप देखिए अभी यूरोप के अंदर जो चीज़ चल रही है, जो कनाडा में है, जो इंग्लैंड में है, जो चीज़ चल रही हैं, आप देखिए वहाँ पे क्या रेसिज्म और क्या चीज़ें उठ करके आती हैं। यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, मैंने पहले दिन कहा था, दूसरे दिन क्या मोदी जी बांग्लादेश जाके ये
अब यार मुझे एक बात बताइए, हर चीज तो मोदी जी पे डाल दोगे हैं? आप मेरे साथ चलने को तैयार है बांग्लादेश? ये बताइए, बंद कराने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, ये जो आज फैलाया जाता है ना कि दे दी आजादी बिना तीर बिना डाल, जी जी बांग्लादेश में कोई आरक्षण को लेकर कोई आंदोलन शुरू होगा, उसका एंड हिंदुओं की हत्या से होता है। वहाँ हिंदू जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ताड़ित करके होता है। वहाँ कोई पॉलिटिकल अगर कोई एक आंदोलन है तो उसके बाद भी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। तो जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा अमेरिका है, तो ये क्या उसी तरफ इशारा कर रहा है कि एंड उसका हिंदुओं पे होगा? बेटा देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे तो किसी की ना किसी मूवमेंट, चाहे वो रेनेगेड हो, चाहे प्रोग्रेसिव हो, या जो भी हो, या कोई भी रेवोल्यूशन या किसी भी वॉर के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है, ये भी जिस तरीके से वहाँ क्रिएट कराई गई कि रिजर्वेशन कहा कोर्ट ने किया था, गवर्नमेंट ने नहीं किया था, समझिए आप। और उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने वापस भी ले लिया तो गवर्नमेंट के ऊपर क्यों आए वो चीज़? इसका मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट उसका कुछ और है, एम इसके कुछ और चल रहे हैं कि मुझे वो चीज़ करा करके ये चीज़ करनी है पूरी इसके ऊपर। हमारे यहाँ भी यही होता है काफ़ी कुछ बेटा। कास्ट वास्ट इन लोगों को रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन कराए जाते हैं। मरता गरीब आदमी है, जो नेता इनकी बात कर रहे होते हैं उनमें से किसी को तो कोई चाटा तक नहीं लगता, कोई चूता तक नहीं है उनको। तो ये एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में चीज़ें हो रही हैं और उसकी एक टोटलिटी देखिए। मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात कही किसी ने गौर नहीं किया मेरी उस बात को, कि जो इस्लामिक फेनेटिज्म आ रहा है, ये जितना खतरा हमारे लिए है उतना ही खतरा ये बड़ा मुस्लिम्स के लिए है। आप समझते हैं वो शेकडम्स वहां पे चलने देंगे इनकी दुबई उबई की और ओमान की? इन शेखों को 2 मिनट में निकाल के बाहर करेंगे। ये टेस्टिंग ग्राउंड्स बन रहे हैं पूरे इसको लेकर के। अगर आप 50% पॉपुलेशन लगा के चले, मैं तो मानता हूं मुस्लिम उसमें विमेन पॉपुलेशन ज्यादा होगी आदमियों से, क्या वो मुस्लिम धर्म के पालन करने वाले नहीं है? तो फेनेटिज्म आता है तो आधी मुस्लिम इस्लामिक पॉपुलेशन को तो आप खुद खत्म कर रहे हैं, अपनी उनके राइट्स खत्म करके पूरे के पूरे। अब देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हाल होगा आपके सामने। सीरिया, बांग्लादेश, ईरान, सब। मैं कंट्री में था सूरीनाम में, ईद वाले दिन मेरे होस्ट एक मुस्लिम थे, तो ले गए मुझे ईद वाले दिन मस्जिद में। तो वहां मैंने देखा विमेन मेल सब साथ है, इबादत भी की, सब कुछ उन्होंने की। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैं कहा भाई हमारे देश में तो ये नहीं होता। तो उसका जवाब सुनिए प्रोफेसर का, कहता हमने बहुत सोच समझ के किया, हम इसमें वेस्टर्न शहर में रह रहे हैं, अगर हमारी कौम को आगे तरक्की करनी है तो हमें अपनी औरत की तरक्की करनी होगी, जिससे हमारे परिवार की तरक्की हो सके। तो ये जो अवेकनिंग है, और जब तक आप केवल बच्चे को, स्त्री को एक टूल समझते रहेंगे किसी भी धर्म में कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, दैट्स ऑल, वो सोसाइटी कभी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। चाहे किसी भी उसकी सोसाइटी हो, चाहे यूरोपियन। और ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो चीजें आज कई और सोसाइटीज में गुजर रही हैं, यूरोप ने सारी फेस की है। इंग्लैंड के अंदर विमेन को फ्रेंचाइज 1921 में मिला था जाकर के, हमने तो एक गो में दिया सारा का सारा, फिर भी हम लोग बैकवर्ड हैं, हम लोगों को नीची नजर से देखा जाएगा। तो अपने अंदर सबसे पहले वो लाइए कि मैं भी कोई चीज अपनी गर्व से कह सकता हूं, फिर उठा के चल सकता हूं। सर, जैसा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे भारत में लेके प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आज चर्चा भी कर रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन जो बांग्लादेशी जो भारत में लगातार घुस रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में देखिए बहुत ज्यादातर जो बांग्लादेशी है वो घुस चुके हैं बॉर्डर से, और इसको लेकर जो वहाँ की जो विपक्षी नेता है वो लगातार आवाज भी उठाते हैं, और साथ ही जब भी चुनाव होते हैं उस दौरान भी कई ऐसे वोटर कार्ड भी मिलते हैं जो कि फेक आईडी होती है। तो ऐसे लोग, क्या इसका खतरा सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं पर तो नहीं है, ये खतरा तो पूरे भारत के हिंदुओं पर भी होता है। आप शायद थोड़ा सा लेट आई थी जब मैंने इस बात को कही थी कि ये खतरा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है और हर कम्युनिटी के ऊपर है। और आपको एक और बता दूं, थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। ममता जी के जरा बयान देखिए, उनके पिछले 4-5-6 दिन के जो आ रहे हैं। अब ममता कह रही है कि वहाँ UN पीस कीपिंग फोर्स लाई जाए बंगाल के अंदर।
उनको चैलेंज भी कर रही है कि ये कलकत्ता को जो तुम लेने की बात कर रहे हो 5 घंटे में 4 घंटे में, कोई सडन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। ये ममता हैज रियलाइज्ड वन थिंग कि व्हाट दे कैन डू टू शेख हसीना who has done so much for them of their own community, whatever appeasement she may do, she will also meet the same fate when it comes to the fanatics. It's a late but it seems a good realization on the part of Mamta, and I hope she acts on those lines over there. उन्होंने अभी रिप्लाई तो किया, लेकिन इसके पहले अगर बात की जाए तो लगातार पश्चिम बंगाल में जगह-जगह से जो है मैम, मैंने तो जगह देखी है जहां पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट पीछे होती थी और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आगे होता था, सीपीएम का। उधर से आदमी उतरता था किश्ती में से, उसको राशन कार्ड और उसका कार्ड पहले थमाया जाता था, उसके बाद में वो अंदर आता था। मैंने तो अपनी आंखों से देखी है ये चीजें। जो हमने रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी हमने पूरा एक सेक्शन बनाया है जिसमें ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन का पूरे पर कैसे इम्पैक्ट होगा। ये जो राइजिंग फंडामेंटलिज्म है ये सिर्फ एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अपरेंटली अभी तो हिंदूज टारगेट है, और ऐसा नहीं है केवल हिंदू, क्रिश्चियन भी, अहमदिया भी और बुद्धिस्ट भी। वहाँ पर कौन जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ रेडिकल्स हैं और दूसरी तरफ ऑल हैं। तालिबान इन पाकिस्तान में तालिबान के रिलेशंस देखिए आप। रिपोर्ट है कि क्या पीएमओ और होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे या इसका अगला स्टेप क्या होगा आपका? रिपोर्ट नहीं साहब, खाली आपको देने के लिए नहीं है, ये तो सब जगह जाएगी रिपोर्ट, सब जगह जाएगी, सबको टैग भी की जाएगी और आपके माध्यम से भी जाएगी जब आप रिपोर्ट करेंगे। तो एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं यहाँ पे, देखिए रोहिंग्या यहाँ से जम्मू तक पहुंच गए थे, जम्मू कैंटोनमेंट के पीछे बसा दिए गए थे, 2013 की बात है। उनको रास्ता कैसे पता चला कि जम्मू तक उनको जाना है पीछे, वहां तक बाहर से आने वालों को? ठीक है, एक बहुत फंडामेंटल चीज मैं कहना चाह रहा हूं और रिलेटेड है इससे। 3 शब्द हैं अंग्रेजी के, इंट्रूडर, रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट। मैं अमेरिकियों की हंसी उड़ाता हूं जब वो यूज वर्ड करते हैं इलीगल माइग्रेंट। देयर कैनॉट बी एनीथिंग लाइक इलीगल माइग्रेंट, इट हैज टू बी एन इंट्रूडर। Who has entered your country without legal documents is not an illegal migrant, he is an intruder. And there is difference between intruder and a refugee. with papers it is intruder. No, With legal papers it is I don't know. I see all American papers and I see your Prashant Bhushan, that 1 rupee औकात वाला advocate of Supreme Court who calls them migrants, you know. नहीं, उनका आशय था कि वो असम में कागज नहीं, आसाम की मैं बात नहीं की साहब, मैं अंग्रेजी के शब्दों की बात की वहां के हिसाब से जो अमेरिका। in general नहीं, आई एम टेलिंग यू, चेंज आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हु इज ए रिफ्यूजी? अगर आप इंट्रूड किया आपने कंट्री में, लेकिन आप रिफ्यूज चाहते हैं, तो आप पुलिस पोस्ट पे गए, आपने कहा कि भाई मेरे पे यहाँ से ज्यादती हो रही थी इस कंट्री में, मैं आपकी कंट्री में रिफ्यूजी स्टेटस लेना चाहता हूँ, आप अप्लाई करिए रिफ्यूजी बनने के लिए, यू विल बी कॉल्ड ए रिफ्यूजी। लेकिन ये नहीं कि कंट्री में कहीं भी इंट्रूड करके चले गए, जब पकड़े गए तो कहो कि मैं रिफ्यूजी हूँ, जिसको हम हिंदुस्तानी मान लेते हैं कि यार कोई रिफ्यूजी है ये, कि साहब बांग्लादेश के इतने रिफ्यूजी हैं हिंदुस्तान में, अरे रिफ्यूजी कहाँ से हो गए? इतने इंट्रूडर्स हैं हमारे। पूछिए यस। अगस्त में जब बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, तो ये हम सब जानते थे कि पूरा बांग्लादेश मेजॉरिटी जो है शेख हसीना को नहीं पसंद कर रहा, उनको जान बचा के भागना पाया। लेकिन क्या वो इंडिया में शरण ली, ये भी एक वजह है हिंदुओं का टारगेट होने? नहीं, ये कोई वजह नहीं। वो कहीं भी शरण लेती, जो हो रहा है वो हो रहा है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू हर इन दैट सेंस, इट इज a question related to that ideology of the fanatics. Rather, they used it as an opportunity to get cleaned of Hindus also by using this case she has taken shelter in. हमारे डिप्लोमेट्स इस चीज को समझ नहीं पाए। नहीं, देखिए मैडम, नहीं, हम देखिए ये बात उस दिन मैं एक डिबेट में था, वहाँ आइकॉन के जो सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि आइकॉन वालों ने उनको चिन्मय जी को डिसोन कर दिया, और वो मुझे पता क्या दे रहे थे ज्ञान, इस्कॉन वाले मुझे पता क्या ज्ञान दे रहे थे वहाँ के वो साहब, कि साहब जितना आप हिंदुस्तान में चिल्लाएंगे हिंदुओं के लिए, उतने हम यहाँ पे ज़्यादा मारे जाएंगे।
सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये थिंकिंग जब होती है ना, तो मैंने कहा साहब एक बात बताइए, 8 करोड़ से कुछ ऊपर थे, अब 1 करोड़ 30 लाख रह गए, हम तो नहीं चिल्लाए थे, अब 7 करोड़ कहाँ गायब हो गए फिर? ये जो एक तमाशा बन गया है इन चीज़ों का कि आप अपनी सहते रहिए और अपनी ज़बान बंद करते रहिए। तो और हमारी एजेंसीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा मैडम। पॉलिटिकल डिसीजन को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं आप। मेरी इंडियन एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, इंडियन अपने सोल्जर के लिए। आज हमारे देश की एक और आपको सब जवाब दे रहा हूं, आज मेरे ह्यूमन राइट्स, मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मेरे कोर्ट्स और मेरी जान अगर बची हुई है तो इसलिए बची हुई है कि 24 घंटे हमारे इस देश का जवान जो है, जो कि किसान का बेटा है, वो 24 घंटे रन ऑफ कच्छ में और कश्मीर में खड़े होकर इस देश की हिफाजत करता है, अपने घर बीवी बच्चों को छोड़ करके। हमारे देश की आज़ादी इसलिए नहीं बची हुई है कि 50 एनार्किस्ट जेएनयू में नारे लगा के टुकड़े टुकड़े होंगे, वो समझते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उन्होंने इस देश में क्रिएट कर दी है। इस देश को बचाया हुआ है तो हमारी डेमोक्रेटिक रिस्पेक्ट करने वाली सेना ने बचाया हुआ है, नहीं हम भी पाकिस्तान हो गए होते। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं पे अटैक हुए ऐसा नहीं है, और शेख हसीना के समय में क्या नहीं हुए? सब समय में हुए हैं। किसी भी गवर्नमेंट रही हो, बांग्लादेश में माइनॉरिटी सफर रही ही रही है, रुका ही नहीं है 46 और डीएमसी के टाइम में जो 2000 का भोला के में जो कांड हुए या फिर जो 1990 के हैं, वो एकदम इन्फ्लक्स में ज्यादा हुए, एकदम बहुत ज्यादा हुए, लेकिन किसी न किसी बहाने से ब्लास्फेमी वाले ऐसे चार्जेस लगा के और करके सारे समय में हुए। खालिदा जिया के टाइम पे तो मैं कह रही हूँ कि 2000 में जो भोला में इंसिडेंस हुआ वो तो बहुत बड़ा था, और भी बहुत सारे हुए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारे दशकों में हर सरकार के और शेख हसीना के समय में भी हुए। ऐसा नहीं है कि तभी तो उसे बिल्कुल सेक्युलरिज्म बिल्कुल कायम था, तभी तो उसे बंद करने पड़े भाई, इतने टेररिस्ट और इतने वहां पे फेनेटिक्स। अब बात ये है कि वहां के हिंदू के लिए समस्या ये है, या किसी भी माइनॉरिटी के लिए, जब एक ऑप्शन हो कि लेस डेविल और बिगर डेविल वाली बात हो, तो उसमें से चूज करने की तो वो स्थिति है वहां पे। असली बात तो ये है, हर समय पर वहां पर फंडामेंटलिस्ट कंट्रोल करते रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक, और मैं एक ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैंने अभी तक नहीं दिया, देना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ की जो राजनीतिक मजबूरियाँ हैं वो बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। कितने कंट्रीज का पैसा आज बांग्लादेश में यूज हो रहा है प्रोफेसर मैडम? ऐसा है, इस तरह के पैसे का ट्रेल का हमारे पास कोई हमें डेटा नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह का एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, एथिकल सपोर्ट, और जो अपरेंटली दिख रहा है सपोर्ट, उस सबसे लगता है कि इकोनॉमिक भी सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा इसका कोई डेटा नहीं। सर एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको, ये जो सवाल उठता है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया जाए, समझे, मेरा असेसमेंट है इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। अफगानिस्तान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड कितने दिन तक किया गया? क्या फेनेटिज्म खत्म हो गया और ज़्यादा जोर के साथ अफगानिस्तान में वापस आया? ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड आपने इतने दिन से कर रखा है, क्या हो गया? और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड का ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है ना वेस्टर्न पावर्स ने, ये एशियाटिक साइकी को नहीं समझते। आपका आदमी प्याज और सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन वेस्टर्न वाले को अगर कोको कोला नहीं मिला ना तो मर जाएगा। इसीलिए कोविड के अंदर जो हम लोग रिकवर करके आए हैं, वो इसीलिए आई है कि हमारी जनता, हमारा आदमी सर्वाइवल के लिए लड़ती है, सर्वाइव करना जानती है, हाथ पैर धर करके नहीं बैठ जाएगी। आप बंद कर दीजिए बिजली बांग्लादेश की, लेकिन जो फेरिटेक है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो डेवलपमेंट चाहता ही नहीं है, वो तो वही करवाएगा अपना बैठ करके। एक तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दुष्ट जो है कितनी भी भली संकट में रह ले, वो अपनी दुष्टता नहीं भूलता है, और दुष्ट के साथ व्यवहार जो है
फिर वो दुष्ट वाला ही किया जाना चाहिए। एक बार समझा दिया उसे तुम गड्ढे में जा रहे हो, नहीं मानता, नहीं मैं तो इधर ही जाऊंगा, तो पीछे से एक लात मारनी चाहिए, जा गिर जाके और मुंह के बल गिरते में। ये बहुत हो गई। हमारी इकोनॉमी सबसे ऊंची थी जब हम गुलाम, नहीं जी, जब से हमने गुलाम बनना शुरू किया, मैं तब की बात कर रहा हूं। बड़ा सोना था हम पे, बहुत मंदिरों में सोना चढ़ाया करते थे, सब कुछ करते थे, हर घर में चरखा भी चल रहा था उस समय, जब से हमने गुलाम होना शुरू किया। तो ये चरखा और इकोनॉमी खाली आपको नहीं ली जाएगी अगर आप लोग अपने डिफेंस पे और अपने सर्वाइवल पे ध्यान नहीं देंगे। लास्ट बात मैं कह के छोड़ रहा हूं। एक सवाल मुझसे जेएनयू में पूछा गया एक बार, नेशनलिज्म पे मैं बोल रहा था। व्हाट इज नेशनलिज्म? टुडे इज ए ग्लोबल वर्ल्ड, व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? I said, I am a very uneducated person. I can't give you the European definitions of nation and nationalism. But I have a question to you. Where you stay, what do you call that place? हम घर कहते हैं जी उसको। मैं कहा वो तुम्हारा घर पेड़ पे टंगा हुआ है या आसमान पे टंगा हुआ है? नहीं, जमीन पे बना हुआ है। मैं कहा जमीन किसकी है? इंडिया की है। आ गए ना देश पे। और अगर तुम्हारे घर पे कोई हमला करेगा तो तुम बचाओगे उसको या छोड़ के चले आओगे, या उसको घर में घुसने दे के एक मंजिल और बना के और फिर वो अपने नाम की तख्ती लगा देगा वहां पे? नहीं जी, घर को बचाएंगे। तो मैं कहा बेटा जो तुम्हारा घर है वही देश है, और जिस तरीके से तुम अपने घर को बचाते हो, देश को ही बचाना, वो घर को बचाना भी राष्ट्रवाद है और देश को बचाना भी राष्ट्रवाद है। देश नहीं बचेगा तो तुम्हारा घर नहीं बचेगा, घर नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। ये एक सिंपल डेफिनेशन पे अगर आप एक काम करें तो दैट विल कट अक्रॉस कम्युनिटीज, दैट विल कट अक्रॉस कास्ट, दैट विल कट अक्रॉस रिलीजन्स, यू विल बी एबल टू सर्वाइव एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन।